Good morning, students, and welcome back to our lecture number 3 of class 7. So, we have already covered two lectures. So, all the basic understanding and basic idea about why we learn English language is already given to you. And this lecture will focus on the first chapter of our class 7. And the chapter name, I hope you remember, that is एक्सप्लोरिंग सिंबल्स मतलब ये एक्चुअली चैप्टर में सिंबल्स क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ. सिंबल्स इसलिए दिया गया था कि हमारे इंडिया की भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल यूज किया जाता है ना. फ्लैग है जो लायन शेप, डिफरेंट ऑफ रिवर्स, बहुत सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है. फूड आइटम्स और लैंडस्केप्स, फूड प्लेसेस. सो अलग अलग सिंबल्स दिया गया है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लोग अलग अलग सिंबल से जो एक कंट्री को पहचाना जाता है. ठीक है, तो हमारे इंडिया भी अलग अलग सिंबल से जाना जाता है बाय डिफरेंट पीपल. सो ये चैप्टर का एक शॉर्ट थीम ये है कि हमारे इंडिया का सिंबल्स ढूंढने के लिए एक एक्टिविटी भी दिया गया है इस चैप्टर में. देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट यू विल कम टू practice in this lesson. So the chapter begins with a small activity number 1, and that is to choose a pen name. Okay, and I will write on the board. One activity हम शुरू करेंगे chapter 1 में. एक्टिविटी क्या है एक्चुअली, यू हैव टू चूज अ पेन नेम. मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या है पेन नेम. बिफोर दैट जो आपको चैप्टर में क्या दिया गया मैं एक बार आपके लिए रीड करता हूँ. ठीक है, आपके पास बुक हो या ना हो कोई टेंशन नहीं है. आप एकदम ध्यान से जो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, सर जो रीड कर रहे हैं आप ध्यान से सुन लेना. ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई रीड फॉर यू इन द चैप्टर 1, exploring symbols, in the activity number 1. Okay, it's all about Rabindranath Tagore. I hope you know about Rabindranath Tagore, right? So let me begin reading. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. He is the poet who wrote India's national anthem, and he won a Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poems when he was only 16. For these first names, Tagore did not use his real name. He used a pen name. His pen name in English meant sunlight. His pen name in English meant sunlight. Okay, so this is about Rabindranath Tagore, because he, who wrote our India's national anthem. Yeah, it's Rabindranath Tagore, the famous poet. Okay, and where he won here. What he won actually, he won a Nobel Prize in Literature in 1913. Okay, so some of the ideas about Rabindranath Tagore I will write on the board. It's a very famous man, right? Rabindranath Tagore, forever remembering, okay, and the big contribution given to our country. Okay, where he born and which year? 1861. And where he born? Calcutta. So you have to note down these points to your notebook, right? He born in Calcutta in 1861. Okay, and
What was his contribution? He wrote India's national anthem. India's national anthem. All these details are already given in your textbook. Okay, you can refer to. So you wrote India's national anthem. And what is the third point? We can he won a Nobel Prize. Normally, normal people do not win this Nobel Prize. It's very famous prize that won by only people who give extraordinary contribution to our country. Okay, so that's called Nobel Prize. He won a Nobel Prize for what? He won in literature. लिटरेचर मतलब साहित्य, ठीक है, पोएम, पोएट्री, स्टोरीज, ठीक है, जो लाइफ टचिंग एक्सपीरियंस जो पोएम की तरह और स्टोरी की तरह जो लिखता है उसको लिटरेचर कहते हैं. तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारा क्लासिकल लिटरेचर लिखा है. तो कौन सी ईयर में उसको नोबेल प्राइज मिला है? यू हैव एन आइडिया अबाउट? या 1913 he won a Nobel Prize in literature. Okay, and another point you can remember about Rabindranath Tagore is that Tagore started to write poetry when he was only 6 years old. Sorry, not 6, 8 years. जब वो 8 साल की बच्चे था वो, तब से वो पोएट्री लिखना शुरू किया. ओके, एंड उनका पहला पोएम्स, एक ग्रुप ऑफ पोएम्स उसने बहुत सारे लिखा था. 8 साल से शुरू किया था. तो उसने सबसे पहले उनका बुक कब पब्लिश किया है? जो उसने 16 साल की उम्र में वो सबसे पहला बुक पब्लिश किया है. ठीक है, और जब उसने पब्लिश किया था काफी टाइम उसने अपना रियल नाम यूज नहीं किया था. तो रियल नाम की जगह पे उसने एक पेन नेम, नॉर्मली उसको कहते हैं पेन नेम मतलब मैं आपको फिर से एक लिख के बताता हूँ. जो रियल नेम यूज नहीं कर, राइटर्स रियल नेम की जगह पे अज्यूम्ड जो प्यारी नाम रखता है उनके लिए, ठीक है, ओरिजिनल नाम की जगह पे. तो उनका रियल नाम का मीनिंग इंग्लिश में था सन लायन. तो ये नाम पे उसने अपना पहला जो पब्लिकेशंस पब्लिश करना शुरू किया. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन इन योर notebook. Okay, fine. So if you are not written, then please pause the video here. Okay, so now we are going to the activity number 1. What is the activity? आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पेन नेम, राइट. पेन नेम मीन्स जो अस्यूम्ड नाम है उसका मीनिंग मैं आपको उधर लिख के दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा. पेन नेम मीन्स अस्यूम्ड नेम. Assumed name used by writer.
issued by writer instead of their real name. जो राइटर का असली नाम, जो ओरिजिनल नाम है, उसकी जगह पे वो अस्यूम्ड मीन्स उसने खुद सोच के एक नया नाम रखा हो, तो उसको पेन नेम कहते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज, ठीक है। तो हमारा एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 1 मैंने लिख के रखा है। तो एक्टिविटी नंबर 1 ये होगा, तो मैं आपको ये रीड करता हूँ जो बुक में थे। इफ यू पब्लिश ए स्टोरी और पोएम, व्हाट pen name would you choose? You can make your names as silly or as serious as you wish. So activity number 1 ये है, आपको एक पेन नेम चूज करना है आपका जो पोएम्स पब्लिश करने के लिए, ठीक है। आपने कुछ पोएम्स लिखा हो या ना हो, वट एवर इट इज, जो भी हो, लेकिन आपको एक अस्यूम सोच के एक डिफरेंट नेम चूज करना है, ठीक है, आपकी पोएम्स पब्लिश करने के लिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका पहला 16 ईयर में उसने पहला पोएम पब्लिश किया था, तो उसने एक पेन नेम चूज किया था, राइट। सो द सेम वे यू आल्सो हैव टू अस्यूम एंड चूज ए पेन नेम दैट कैन बी कॉल्ड अस्यूम्ड नेम, पेन। तो आपको कौन सा नाम चूज करना है, तो आप पहले नोटबुक में लिख लो, ठीक है। वीडियोस को पोस्ट करके रख दो, रहने दो कोई बात नहीं। तो आपको ये से एक पेन नेम चूज करने के बाद एक बॉक्स में लिख देना, ठीक है, आपकी नोटबुक में व्हाट मे बी योर पेन नेम, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर यू, ओके। आफ्टर अगर आपकी पेन नेम जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। Or you can just contact me personally. Under what pen name you like to publish any pen names? तो pen names का एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, राइट। तो अगर आपके कांटेक्ट में जो आपकी फ्रेंड्स हो, तो आपकी फ्रेंड्स को भी पूछ लेना, भाई तेरा पेन नेम क्या है, तुम क्या नाम पे जाना चाहते हो। तेरा नाम तो किसी को पता नहीं, बट तेरा जो वर्क है वो किस नाम के अंदर, किस पेन नेम के अंदर जाना चाहते हो, इट्स कॉल्ड पेन नेम, राइट। सीरियस नाम भी लिख सकते हो या एकदम सिली नाम भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1, ओके। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। Okay, fine. So the first activity about the poem related to, or the person related to our nation, he has written our national anthem. That is none other than Rabindranath Tagore, who was born in Calcutta in 1861, and he won Nobel Prize in Literature in 1913. And he started writing his works of poems when he was 8 years old, and he published his first book when he was 16 years old under the pen name Sun Lion, okay. So getting inspiration from Rabindranath Tagore, you also have chosen one pen name. आपने भी एक पेन नेम चूज किया ना, या सोच के भी आप चूज कर लेना, बहुत ध्यान से पेन नेम चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे, दैट इज द पोएम रिटन बाय Rabindranath Tagore. The name of the poem is Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear. Do you have textbooks with you? आपके पास बुक होगा, राइट, शायद। अगर नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको हर सेंटेंस, हर लाइन्स
रीड करके एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द पोएम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम that has ever written by Rabindranath Tagore, that begins with where the mind is without fear. जहाँ हमारा माइंड में, हमारा मन में डर ना हो, अगर नहीं है तो हमारा माइंड में अगर डर होगा तो हम काफी चीज करने से स्टॉप कर देता है हमारे को ना। अगर हमारे माइंड में इतना विल पावर है, इतना हिम्मत है, तो हम कुछ भी डिफिकल्ट टास्क आपको लग रहा है या कोई चीज ऐसा वो आपको पीछे कर देता है कि नहीं करना है, नहीं करना, वो आपको, आपकी माइंड में इतना हिम्मत है तो आप खुद से कर लेते हैं। अगर आपकी माइंड में, आपके मन में अगर हिम्मत नहीं है, हमेशा डरते डरते रहेगा तो क्या होगा, आप सोचेंगे यार ये मेरे से नहीं होगा, या मेरे से नहीं होगी, या ये मेरा काम नहीं है, तो शायद मेरे से नहीं होगा, ऐसे सोच सोच के आप हमेशा डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। वो डर की वजह से आपको बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, राइट। सो अगर आपकी माइंड में हमेशा डर ही रहेगा तो आप काफी काम आप कर नहीं पाएंगे। रविंद्रनाथ आपको बहुत ये पोएम से आपको सिखा रहे हैं, जब हमारा माइंड में ये जो चीज नहीं होगा तो आपको, आपकी स्किल्स ऐसी जगह पे आप पहुंच जा सकते हैं कि एकदम टॉप लेवल में आपका ग्रोथ हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड, वी हैव टू कीप एंड वी हैव टू मेक आवर माइंड विदाउट फियर। विदाउट फियर मतलब डर बिना। विदाउट फियर एक्चुअली समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज नॉट गुड। क्योंकि आपको लगा, आप अभी सोच रहे सर डर बिना कैसे, आप हमारा पेरेंट्स को, हमको, हम थोड़ा तो डरता है ना, आपकी टीचर्स पे भी आप थोड़ा डर है, ठीक है, और काफी चीज में आपको थोड़ा डर तो चाहिए। डर तो चाहिए, जहां चाहिए वहां जरूरी है। और अननेसेसरली बिना कोई वजह आप डरते रहेगा पूरी जिंदगी तो आप हमेशा, आपकी लाइफ का क्वालिटी कम होते जाएगा। दैट इज द मीनिंग, ओके। तो उल्टा मत समझना, पॉजिटिवली सोचो। डर चाहिए जहां चाहिए, और डर नहीं रखना है जहां डरने का कोई जरूरत ही ना हो, ओके। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। सो फर्स्ट लाइन आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर यू, वेयर द माइंड इज विदाउट। जहां हमारा माइंड में अगर डर नहीं होगा तो हमारे एक विजन, हमारा सपना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डर नहीं है तो वही हम तो ही काम कर सकते हैं ना, और डर नहीं है तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम ऐसे डर के पीछे हट जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 2 लाइन्स मैं आपके लिए रीड करूंगा ये जो पोएम का, ठीक। Where the mind is without fear and the head is held high, and the head is held high. The two things that you have to write. Where the mind is without fear and the head is held high. The head is held high. जहां हमारे मन में डर ना हो एंड हमारा सर हमेशा सीधा रखे। कौन सर नीचे करता है? जिसने लाइफ में कभी गलतियां किया हो, ठीक है। अगर आपने गलती नहीं किया हो तो किसके सामने झुकने का जरूरत नहीं, ठीक है। अगर डर है अंदर से कि मैंने कुछ गलती किया हो तो हमेशा हमारा सर ऐसे नीचे हो जाए ना, किसी के सामने सर झुकने की जरूरत नहीं। We have to keep our head always straight, high. हमेशा ऊंचाई पे ही देखने का है, ठीक है। कभी नीचाई नहीं देखने का है। देखना है जब जरूरत हो तो, लेकिन हमारा सेल्फ एस्टीम एंड हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा कैसे रहना है, एकदम स्ट्रेट। डोंट कीप योर हेड लाइक दिस, डोंट कम डाउन, ओके। एंड वी शुड हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम that should always keep our head, that held always straight and high, that we have to aim higher, we have to look upward, not downward, always upward, and we have to aim high. हमेशा अच्छाई और ऊंचाई एम रखना है तो हमारा हर काम सक्सेसफुल होगा। और हर चीज सक्सेसफुल होने के लिए हमारे साथ हमेशा अच्छी चीज के लिए फोकस रखने के लिए हमारे अंदर क्या चीज का जरूरत नहीं है, डरने का चीज, डरना नहीं है, डर नहीं चाहिए,
ठीक है, हमेशा क्या रखने के अंदर, हिम्मत रखना है, ठीक है. So this is the beginning of the poem that we have discussed in the lecture number 3, and one activity also we have done. So in the next lecture I will just explain to many lines about in this poem. So we'll see in the next lecture. Okay, so stay home, stay safe, happy.